Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 4. How are you? Hope you all are fine and good. Student, this is your social study video lecture and I'm your teacher, Mrs. Asma Sohail. Today is Tuesday, 27th April 2021. My dear little kids, today we are going to do the work on booklet page number 1 and also reading of book page number 4. We shall read about tolerance. Hope students that you all of you have got the booklets from the school. Okay, all of them very good. Now take out your booklets and your book and keep your pencils in your hands. This is your booklet. The front page of your booklet is this. This is the front page of your booklet. First of all, you have to write your name, section and branch. Students, don't forget to write your name, section and branch. This is the second page. It is an index page. In this page I have mentioned all the unit which we are included in this booklet. Peaceful society, people and tribe of Pakistan, geographical region, commerce and banking. Turn the page and look at page number 1. First of all, you have to mention date and day. This is self-introduction page. Assalamu alaikum. My name is Dash. Here you you have to write your name. I am Dash years old. My birthday is on Dash. I am from Dash. You have to write the name of your country. In which country do you live? Yes, you live in Pakistan. I live in Dash city. In which city do you live? In which city? Yes, Lahore. I live in Lahore. There are Dash people in my family. My father is if your father is a doctor, you have to write my father is a doctor. If your father is an engineer, you have to write my father is an engineer. So you have to cut a. My mother is a dash housewife, doctor, banker. You can write. My school name is, do you know? In which school do you read? Oh, Jinnah Officer School. My favorite subject, okay student, here is the spelling mistake of subject, so you cut it. My favorite subject is math, English, Urdu, Islamiyat, art. My favorite sports is yes, any कोई भी खेल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, like cricket, hockey, football, ludo. I want to become a dash. आप क्या बनना चाहते हैं? After completing your study, what do you want to be? Doctor, engineer, pilot, soldier, architect. My favorite food is, what do you want to like to eat? आप क्या खाना पसंद करते हैं? What do you like to eat? Pizza, burger, biryani. My favorite drink is, which drink you like to drink? Juice, milkshake, Pepsi, Coke, Fanta, Mirinda. द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माई कंट्री, आपकी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको लगती है, जहाँ हम बार बार जाना चाहते हैं, यू हैव टू राइट द नेम हेयर. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स. वी शैल रीड अबाउट टॉलरेंस. व्हाट इज़ टॉलरेंस? टॉलरेंस मीन पेशेंस, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल. टॉलरेंस का मतलब होता है सब्र, बर्दाश्त. फेयरनेस का मतलब है आपकी बात में सच्चाई हो, सदाकत हो. एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, और आप सब लोगों का जो भी ओपिनियन है, जो भी वो राय दे रहे हैं, आप उनकी इज्जत करें. आपके अंदर सब्र हो, आप सामने वाले की बात को बहुत आराम से सुने, आपको गुस्सा नहीं आए, और उसके बाद आप कोई फ़ैसला करें. दिस इज़ टॉलरेंस. पीस, काम डाउन हो जाना. ओके, नाउ लेट look at page number 4. You have to write mention date here. आपने यहाँ पे mention करनी है date, day and class work. Let's learn about some steps through which peace can be maintained. In our previous lecture we had read about peace के बारे में हमने पढ़ा था कि what is peace, क्या है. When peace is a thing when our society
We had read that our society should be free of quarrel, theft, robbery, and violence of the human rights. And there is love, friendship, sharing, caring, and take care and respects other. नाउ लेट्स लर्न. अब हम कोई वो स्टेप्स पढ़ते हैं जिनके करने से पीस जो है वो वहाँ पे कायम हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे पीस है. नंबर 1 इज़ टॉलरेंस. टॉलरेंस मीन सब्र, बर्दाश्त, कम डाउन हो जाना, सामने वाले की बात को बहुत आराम से सुनना. पीस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट टॉलरेंस. दे आर सेइंग द पीस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश. पीस, अगर हम किसी जगह पे अमन कायम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे पुरसकून हो, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है वो टॉलरेंस है. यानी कि हमने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है. वी हैव टू टॉलरेट ईच अदर. हमने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखना है, बर्दाश्त करना सीखना है. अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तब भी आपने अपने अंदर अपने आप को काम डाउन रखना है, एग्रेसिव नहीं होना, एंग्री नहीं होना. वी शुड लिसन अदर्स ओपिनियन रिस्पेक्टफुली. हमें सामने वाले का जो भी ओपिनियन है, जो भी वो हमें राय दे रहा है, उसको हमने बहुत इज्जत देनी है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना है. इट इज़ नॉट अनहेल्दी टू डिसएग्री. ये बिल्कुल भी मतलब सही बात नहीं है कि आप किसी की बात से डिसएग्री करें. इट टर्न्स इनटू प्रॉब्लम व्हेन वी ट्राई टू एनफोर्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू. मुश्किल वहाँ से शुरू होती है जब हम कोई व्हेन वी ट्राई टू एनफोर्स आवर, जब हम अपना जो हमारा हम जो सोच रहे हैं, हमारे माइंड में जो चीज़ चल रही है, हमारी जो राय है, हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ एग्री करे. बट सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट्स ऑल ऑफ देम एग्री विद यू. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो सही है और सामने वाला भी उसके साथ एग्री करे. सम टाइम वो डिसएग्री भी कर सकता है, तो आप अगर वो डिसएग्री कर रहा है तब भी आप उसकी रिस्पेक्ट करें. टू मेंटेन पीस वी शुड डिसएग्री विद अदर रिस्पेक्टफुली. पीस कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले की जो बात है, अगर हम उसको वो हमारी बात से डिसएग्री कर रहा है, नहीं मान रहा है, तब भी हम उसको इज़्ज़त दें. लेट्स थिंक अबाउट अ सोसाइटी. आप एक सोसाइटी, एक माशरे में रहते हैं. आप सोचें, इन विच पीपल डू एवरीथिंग इन द सेम वे, लाइक थिंकिंग, ड्रेसिंग अप एंड ईटिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, क्या सब एक ही तरह सोचते हैं, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं और एक ही जैसा खाना खाते हैं? इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? नो, सर्टनली इट्स नॉट पॉसिबल. नहीं भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वाई डिसएग्रीमेंट इज़ द ब्यूटी ऑफ सोसाइटी. वी शुड हैंडल इट विथ पेशेंस. का मतलब क्या हुआ कि जो डिसएग्रीमेंट है वो आपकी सोसाइटी की खूबसूरती है. वहाँ सबको आज़ादी है, राय का हक़ है. मतलब हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ हर इंसान को ये हक़ दिया गया है कि वो अपनी बात का इजहार करे और आप उसकी बात को सुनें. वो जो कहना चाहता है आप पहले उसको सुने. ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और सामने वाला भी ही आपके साथ एग्री करे और आपके पीछे पीछे रहे. नो, वो आपकी बात से डिसएग्री कर सकता है और आपको उसकी ये बात सुननी भी है और सब्र से उसको बर्दाश्त भी करना है. और कोशिश करनी है कि अगर आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप एक लंबा सा सांस लें, काम डाउन हो जाएं, बिल्कुल कुछ मत बोलें. और जो बात आपको तंग कर रही है, अगर वो आपसे डिसएग्री कर रहा है तो फिर आप एक साइड पे हो जाएं. थोड़ी देर के लिए आप उस बात के बारे में सोचना छोड़ दें. पर जब आप काम डाउन हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आप इस बात के बारे में सोचेंगे जबकि वो जो ये कह रहा था हो सकता है वो ठीक ही कह रहा था, तो फिर आप सोचने के काबिल होंगे. गुस्से में हम जो भी फ़ैसला करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होता. इसलिए हमें पेशेंस, सब्र से काम लेना चाहिए और सिर्फ अपनी बात दूसरों को मनवानी नहीं चाहिए कि जो हम कह रहे हैं बस वही होगा, बल्कि सामने वाले की बात की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे भी इज्जत देनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, our lecture is completed. Now you have to read this passage approximately 2 times. आपने इस पैसेज को पढ़ना है. अल्लाह हाफिज़.